My dear student, the topic of the day is very important part of the physiology, and that part is known as male reproductive system. As you know it very well, in human the reproduction is of sexual type. In sexual reproduction there is requirement of fusion of gamete, and the gamete is formed in important structure, that is gonad, and gonad itself formed by mesodermally derived structure. This is the very important part of the reproductive system. Now I am going to discuss about the different parts of the reproductive system. Before going to start, dear student, be careful for multiple questions. Entire topic, in this entire topic, I will discuss about the relevant questions, relevant important points for betterment of your examination. Maximum solving skills of questions. Try to analyze my lecture, try to go through my lecture. It is very important for you for maximum number for achievement of your goal. It is very essential. Please listen to me carefully. Now I am going to start male reproductive system. These are the following components I have explained on this board. Now, male reproductive system, it is composed of first, that is primary sex organ. This primary sex organ is known as testis. It is mesodermally derived. This one is mesodermally derived. Now, the second point is accessory duct system. What are the accessory ducts? Such as rete testis, vasa efferentia, epididymis, and vas deferens. Rete testis, vasa efferentia, epididymis, and vas deferens. These are the accessory duct system. These duct system will not form gamete but assist in reproduction. Next one, accessory glands. What are the accessory glands? For example, seminal vesicle, prostrate, Cowper's gland, and very important part is penis, that is intromittent organ, copulatory organ. This contains erectile tissue. Erectile tissue, a specialized tissue present in the penile organ. It is of two types, corpora cavernosa and corpora spongiosa. ये very important structure है जो particularly penile organ से associated है. Now I am going to detailed description of the primary sex organ testis on another book. Now I am going to start. Dear student, I am going to start important topic, that is testis, primary sex organ. It is 2 in number. Very important point, 2 in number. Located in a pouch-like structure, that is a scrotum. It is extra abdominal. तब आपके सामने प्रश्न उठता है, ये टेस्टिस बनता कैसे है? पहले इसका पोजीशन कहाँ था? फाइनली ये कहाँ हो गया? इस फाइनल पोजीशन को अचीव करने में किसका रोल हुआ? और इसके अंदर जो स्ट्रक्चर क्या है? इनसे एसोसिएटेड टिश्यू क्या है? उस टिश्यू के स्पेसिफिकेशन क्या है? ये सारे मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लीज लिसन टू मी केयरफुली. ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए. डोंट मिस ईच एंड एवरी लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ तो बात आ रही थी कि ये टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है. इनिशियली वो इंट्रा एब्डोमिनल था, लेकिन ये टेस्टिस बना कैसे? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि बनता कैसे, इसके डिफरेंशिएशन कैसे होते हैं. आप जानते होंगे कि मेल जो इंडिविजुअल है उसके पास 2 क्रोमोसोम होते हैं, कि X और एक Y, और एक होता है ऑटोसोम्स. तो ऑटोसोम्स 44 हो गए और XY जो हो गए, ये जो है सेक्स क्रोमोसोम है. Y क्रोमोसोम पर एक स्पेसिफिक जीन का ग्रुप होता है, दैट इज SRY जीन. This particular gene is responsible for the differentiation and development of testicular structure, that is seminiferous tubule, spermatic cord. That means मेल कंट्रोलिंग फैक्टर में SRY जीन का बड़ा रोल है. ये कैसे
एक्सप्रेस होता है, जैसे इसको हम बताने जा रहे हैं। SRY जीन आप जान चुके हैं, ये वाई क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है। वाई क्रोमोसोम पर जो SRY जीन है, इससे SRY प्रोटीन बनता है, दैट इज टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। ये टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर SF1 स्टेरॉयडोजेनिक फैक्टर, SP1, SF1, WT1 इनके साथ मिलकर के एक इंपॉर्टेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का ग्रुप बनाता है। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर SOX9 नाम के प्रोटीन को एक्सप्रेस करता है, अ टाइप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ये SOX9 स्पर्मेटिक कॉर्ड और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करता है। यानी अगर ओवरऑल कहा जाए कि ये जो SRY जीन है वो टेस्टिक्यूलर डिफरेंशिएशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। This is the very important part, that is the testis is differentiated in response to SRY gene expression. ये टेस्टिस जो देख रहे हैं ये स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है, लेकिन इनिशियली ये एब्डोमिनल होता है, इंट्राएब्डोमिनल। ये स्क्रोटम में शिफ्ट होता है ऑन 7 month ऑफ गेस्टेशन। 7 months, 8th month और 9th month में ये एक फेज होता है जिसमें ये ट्रांसफर होता है। इस ट्रांसफर में जो हार्मोन की भूमिका होती है, उस हार्मोन का नाम है मेल एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन। इसके इन्फ्लुएंस से ये शिफ्टिंग संभव हो पाता है। अगर ये शिफ्टिंग फेल हो जाए ड्यू टू जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी, फॉर एग्जांपल INSL3 जीन डिफेक्ट अगर हो जाए, तो गुबर्नाकुलम नाम का जो स्ट्रक्चर है उसका प्रॉपर लोकलाइजेशन नहीं हो पाता है, प्रॉपर शॉर्टनिंग नहीं हो पाता है, जिसके वजह से टेस्टिस एब्डोमिनल ही रह जाता है। तब इस बीमारी को क्रिप्टो ऑर्किडिज्म कहा जाता है। दिस पर्टिकुलर डिजीज इज नोन एज क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। तो मैं कह रहा था, ये टेस्टिस का जो शिफ्टिंग के बारे में बात हम लोगों ने किया, ये किस किस मंथ में होता है। 7 month ऑफ गेस्टेशन, 8 और 9 में ये कम्प्लीटली शिफ्ट हो जाता है। अगर शिफ्ट नहीं हो पा रहा है, चाहे किसी कारणवश शिफ्टिंग में कहीं कुछ गड़बड़ी आ रही है, तो एक सर्जिकल ऑपरेशन होता है, प्रोसेस होता है, जिसका नाम है ऑर्किपेक्सी प्रोसेस, जिसमें कि टेस्टिस को शिफ्टिंग कराया जाता है इनटू द स्क्रोटम। अब मैं बात करने जा रहा हूँ द लेयर ऑफ द टेस्टिस। ये जो टेस्टिस है स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है। इसमें कौन कौन से लेयर है? सबसे पहला लेयर जो आ रहा है, जो टेस्टिस के कांटेक्ट में है, दैट इज टूनिका वेस्कुलोसा। ये कनेक्टिव टिश्यूज और ब्लड वेसल्स से बना है। और ये जो है उसके जस्ट ऊपर होता है टूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये जो है ब्लड वेस्कुलराइजेशन प्रोवाइड कराता है टुवर्ड्स द वेस्कुलोसा। और सबसे एक्सपोज जो बाहर की तरफ होता है लेयर, वो कहलाता है टूनिका वेजिनालिस। ये टूनिका वेजिनालिस में 2 लेयर होते हैं, एक पेराइटल लेयर होता है और एक विसरल लेयर होता है। जो विसरल लेयर होता है नियरेस्ट टू द टूनिका एल्ब्यूजिनिया, और पेराइटल लेयर बाहर की तरफ एक्सपोज होते हैं। इस दोनों के बीच में स्पेस होता है और उसमें फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं। अगर फ्लूइड की मात्रा इस दोनों के बीच में बढ़ जाए तो बीमारी होती है हाइड्रोसेल। This is a very important aspect about the disease aspect of the disease. ये एक पार्ट आ गया, ये जो एक्सप्लेन हमने किया। अब हम लोग नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जो इंटायर टेस्टिस है, ये टेस्टिस, एपिडाइडिमिस, ये सब जो रीजन है यहाँ पर, ये गुबर्नाकुलम से अटैच्ड होता है, दैट इज द वॉल ऑफ द स्क्रोटम से। ये एक फाइब्रस टिश्यू है। ये टेस्टिकुलर लिगामेंट के नाम से जाना जाता है। इनिशियली जो होता है ये काफ़ी बड़ा होता है और टेस्टिस को एब्डोमेन से ही कनेक्ट किए रहता है और स्क्रोटम के वॉल से ये अटैच होता है। जैसे जैसे ये शॉर्ट होता जाता है, ग्रेजुअली एब्डोमेन से जो इंट्रा एब्डोमिनल से टेस्टिस धीरे धीरे जो है ये मूव कर जाता है इनटू द स्क्रोटम। इस मूवमेंट को कंट्रोल करने वाला इस पर्टिकुलर ये मूवमेंट जो है, ये मूवमेंट हो रहा है बिकॉज ऑफ गुबर्नाकुलम शॉर्टनिंग।
और गुबर्नाकुलम बनाने वाला जो जीन है उसका नाम है INSM3 जीन। इट प्रमोट्स डिफरेंशिएशन ऑफ द गुबर्नाकुलम। ये गुबर्नाकुलम जैसे जैसे शॉर्ट होगा, टेस्टिस ग्रेजुअली एब्डोमेन से, इंट्रा एब्डोमेन से स्क्रोटम की तरफ शिफ्ट होगा। These are the normal phenomena for shifting of the testes from intra-abdomen into the scrotum. अगर इसमें कोई जेनेटिक म्यूटेशन हो जाए इस जीन में, तब ये पर्टिकुलर गुबर्नाकुलम के फॉर्मेशन में डिफेक्ट आ जाएगा और फाइनली टेस्टिस इंट्रा एब्डोमिनल ही रह जाएगा और स्टेरिलिटी की शिकायत हो जाएगी, इनफर्टिलिटी की शिकायत हो जाएगी, स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अबाउट द शिफ्टिंग ऑफ द टेस्टिस फ्रॉम इंट्रा एब्डोमिनल इनटू द स्क्रोटम। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम डिस्कसिंग, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। अब नाउ द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, कौन कौन स्ट्रक्चर इससे एसोसिएटेड है। तो आपने देखा कि ये टेस्टिस है, टेस्टिस के बारे में आप जान चुके हैं। टेस्टिस ये जो स्ट्रक्चर है ये मेल गोनैड है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। इसके अंदर करीब एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। हर कंपार्टमेंट में 1 से लेकर 4 सेमिनिफेरस टिब्यूल होते हैं। As you know it very well, सेमिनिफेरस टिब्यूल एक ऐसा टिब्यूल है जहां स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, स्पर्म प्रोडक्शन की बात आप करते हैं। These are the seminiferous tubule। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ग्रीन स्ट्रक्चर है सेमिनिफेरस टिब्यूल है। सेमिनिफेरस टिब्यूल जब कई सेमिनिफेरस टिब्यूल जब यूनाइट करते हैं तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उनका नाम है ट्यूबुलाई रेक्टाई, जिसको आगे के डायग्राम में हम लोग मेंशन करेंगे। अभी फिलहाल इस पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। ट्यूबुलाई रेक्टाई जब यूनाइट करता है तो कई चैनल्स बन जाते हैं, चैनल बन जाते हैं। उस चैनल को, इस कॉम्प्लेक्स चैनल को कहा जाता है रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस से ओरिजिनेट करता है वासा इफरेंशिया, 15 to 20 इन नंबर होते हैं। वासा इफरेंशिया ओपन करता है, ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर कॉमा सेप्ट स्ट्रक्चर है, इसको इपिडाइडमिस कहते हैं। इट इज द टेम्पररी स्टोरेज साइट ऑफ द स्पर्म। और यहाँ पर इनिशियली स्पर्म को वायबल, पहले तो ये होता है इमैच्योर, ग्रेजुअली इसकी मैच्योरिटी इसको प्रोवाइड कराई जाती है। ये इमोटाइल होता है लेकिन इसको वाइबिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। उसके माइटोकॉन्ड्रिया को उसको पावर दिया जाता है ताकि स्पर्म की वाइबिलिटी मेंटेन हो इन एपिडाइडमिस। कुछ समय के बाद डिजेनरेटेड स्पर्म का इसमें एब्जॉर्प्शन होता है विद द हेल्प ऑफ स्टीरियोसीलिया एसोसिएटेड विद द pseudostratified columnar epithelia of the epididymis. Now I'm going to explain in detail in another diagram. Please follow my lecture. In this diagram, thus I am going to explain about the important muscles regulating the temperature of the testes and the vascular complexes जो कि टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, लोअर करता है 2 to 2.5 डिग्री सी फ्रॉम एब्डोमिनल टेम्परेचर। स्क्रोटम में टेस्टिस पहुंच चुका है, उसका टेम्परेचर एब्डोमिनल टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री कम होता है। इसको कम करने में जो मसल्स का रोल होता है उसकी चर्चा होगी। वो है आपका डार्टोस्टियोनिक और दूसरा क्रीमेस्टर मसल, और जो और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो पैम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस, इसको कहा जाता है काउंटर करेंट हीट एक्सचेंजर। ये पैम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस एक्चुअली वेन्स का कॉम्प्लेक्स होता है जो आर्टरी के अराउंड अरेंज होता है इन फ्रंट ऑफ वास डिफरेंस। दिस इज पैम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस। पैम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस 10 वेन का एक प्लेक्सस है, जाल है, जो कि टेस्टिकुलर आर्टरी के चारों तरफ लिपटा हुआ रहता है। और ये टेस्टिकुलर जो आर्टरी है उसको कूल करने का काम करता है, उसके ब्लड को कूल करने का काम करता है। ये कहलाता है पैम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस।
इसके वजह से भी टेस्टिकुलर टेम्परेचर जो है इंट्रा एब्डोमिनल टेम्परेचर से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, 2.5 डिग्री कम हो जाता है। ये कम होना टेस्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू प्रमोट स्पर्मेटोजेनेसिस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अबाउट द टेस्टिस। और अगर मान लीजिए कि पूरे इन्वायरमेंट में टेस्टिस का लोकेशन हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द इन्वायरमेंटल टेम्परेचर। अगर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर कूल हो तो टेस्टिस ऊपर की तरफ शिफ्ट करता है और ये शिफ्ट करता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो फिर टेस्टिस नीचे स्क्रोटम की तरफ शिफ्ट होता है। ये दोनों का शिफ्टिंग का रेगुलेशन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स पर डिपेंड करता है। वो मसल है डार्टोस मसल और डार्टोस ट्यूनिक मसल और क्रीमास्टर मसल। डार्टोस ट्यूनिक मसल is a type of smooth muscles, while cremaster muscle is a type of striped muscles. इस दोनों मसल्स के पार्टिसिपेशन से इस तरह का मूवमेंट संभव हो पाता है, यानी पोजिशनिंग ऑफ द टेस्टिस इनसाइड द स्क्रोटम डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर विल बी कंट्रोल्ड बाय डार्टोस ट्यूनिक एंड क्रीमास्टर मसल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेडिकल एग्जाम। And here the diagram, next part, pampiniform plexus, I have already explained. Now the further description will be on another diagram. In this diagram, 10 veins, total 10 veins इसमें जाते हैं ये to constitute pampiniform plexus। और फिर आर्टरी जो होता है टेस्टिकुलर बेस से, और वेन भी मोरलेस बेस से ही होता है। और कुछ वेन्स जो है एपिडाइडिमिस से मिल करके कंस्टिट्यूट करते हैं, आगे बढ़ करके ये एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, या कहिए कि प्लेक्सस बनाते हैं। इस प्लेक्सस को भी पैम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस कहते हैं। ये प्लेक्सस बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस, और यही 2 to 2.5 डिग्री लो करने में मदद करता है। यहाँ पर इस पॉइंट को हाईलाइट कर दिया गया कितने वेन्स हैं और आर्टरी का इंपॉर्टेंट। Specification of internal structure of testes. Here diagram explains all these things. सबसे important बहुत सारी बात हम लोग पढ़ चुके हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस ये किस एपिथेलियम से घिरा हुआ होता है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम है। इसी में मियोटिक डिवीजन होता है। इनिशियली माइटोसिस होता है, बाद में मियोसिस होता है, स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होता है। एक और इंपॉर्टेंट सेल इसी के साथ है सर्टोली सेल। ये नरिशमेंट प्रोवाइडिंग सेल है। ये एक्टिविन इनहिबिन टाइप के हार्मोन को भी प्रोड्यूस करता है। एट द सेम टाइम एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को भी ये प्रोड्यूस करता है इन रिस्पॉन्स टू फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका दूसरा नाम सस्टेंटिकुलर सेल है। कई बार क्वेश्चन आया है कि इसका दूसरा नाम सर्टोली सेल को और क्या कहा जाता है? सस्टेंटिकुलर सेल। अब दूसरे पार्ट को हम लोग बात करें। ये ट्यूबुलाई रेक्टाई है। पूरा जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक साथ फ्यूज हो जाते हैं एक कंपार्टमेंट में, कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं? 1 से 4 होते हैं। चारों जब फ्यूज होते हैं तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को ट्यूबुलाई रेक्टाई कहते हैं। अब ये ट्यूबुलाई रेक्टाई फ्यूज होकर के एक नेटवर्क फॉर्म करता है जिसमें चैनल्स होते हैं रेटी टेस्टिस। इस टेस्टिस में कौन सा एपिथेलियम होता है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये सारी जो एपिथेलियम है एसोसिएटेड स्ट्रक्चर जो भी इनके साथ जुड़ा हुआ है, इनको आप टिप ऑफ द टंग पर आप रखें, क्योंकि ये क्वेश्चंस के पार्ट हो सकते हैं आपके लिए। मार्क्स पे पॉइंट के लिए बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है। लिसन टू मी केयरफुली। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं वासा इफरेंशिया, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वन। तो यहाँ आप देखेंगे कि ट्यूबुलाई रेक्टाई, सेमिनिटेबुलाई रेक्टाई हुआ, रेटी टेस्टिस हुआ, वासा इफरेंशिया, ये इंट्राटेस्टिकुलर इन्वायरमेंट कॉज करते हैं। ये मिलकर के इंट्राटेस्टिकुलर, आगे के लेक्चर में मैं बताऊंगा इसके बारे में। और ये वाला जो एपिडाइडिमिस बाकी वाला जो पार्ट है वो एक्स्ट्राटेस्टिकुलर सिस्टम का पार्टिसिपेट। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है इंट्राटेस्टिकुलर पार्ट कौन कौन से आते हैं और एक्स्ट्राटेस्टिकुलर पार्ट कौन से आते हैं। ये क्वेश्चन का खास है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन और आता है कि जो स्पर्म फॉर्म करते हैं उनका फॉर्म करने के बाद उनका ट्रांसपोर्टेशन का ट्रैक कैसे है, रूट कैसे कैसे है।
कैसे बना, किसके थ्रू पास किया, कौन पास कराने में मदद किया, कौन टेम्पोररी स्टोरेज है, ये सारे पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। ये क्वेश्चन का एक पार्ट बनता है। नाउ तो ये वासा इफरेंशिया की बात करें थी, इनकी संख्या 15 से 20 होती है। वासा इफरेंशिया, इसको डक्ट्यूली इफरेंटिस भी कहा जाता है। ये वासा इफरेंशिया जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर जो एपिथेलिया पाया जाता है उसका नाम है सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलिया। ध्यान दें, सीलिएटेड, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स के लिए मूव कराता है फ्लूइड के साथ, स्पर्म को फ्लो करवाने में मदद करता है। ये सीलिया जो एसोसिएटेड है इनके साथ। दूसरा पार्ट आता है इसी में, ये आता है एपिडाइडमिस और वास डिफरेंस। दिस वन इज द वास डिफरेंस। एपिडाइडमिस के भी स्ट्रक्चर को डिटेल में बाद में एक्सप्लेन किया जाएगा। एपिडाइडमिस में कैपट एपिडाइडमिस, कॉर्पस एपिडाइडमिस, कॉर्डा एपिडाइडमिस, इस पार्ट को हम लोग अलग लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल इसके एपिथेलिया के बारे में जानिए। इसमें स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलिया, ध्यान दें इसमें सीलिया नहीं होगा, स्टीरियोसीलिया प्रेजेंट होगा, इट इज नॉन मोटाइल सीलिया। और ये मेन काम क्या है, डिजेनरेटेड स्पर्म्स को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। इस पर्टिकुलर पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट सेल पाए जाते हैं, इसको मेन सेल और प्रिंसिपल सेल कहा जाता है, जो कई केमिकल प्रोवाइड करते हैं फॉर टू मेंटेन द वायबिलिटी ऑफ स्पर्म्स और फॉर मेंटेनेंस ऑफ वायबिलिटी ऑफ स्पर्म्स। ये कुछ केमिकल है, कार्निटीन, ग्लिसरॉल, फॉस्फोराइल, कोलिन, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल हैं जो वायबिलिटी ऑफ स्पर्म के लिए बहुत ही जरूरी है इस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द टेस्टिस। ये काफी टॉर्चुअस होता है, ट्यूब्यूलर होता है। ये एपिडाइडमिस देखिए, टेम्पोररी स्टोरेज साइट ऑफ द स्पर्म है, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम जो स्टीरियोसीलिया लाइंड है, और एट द सेम टाइम वास डिफरेंस जो कॉर्डा एपिडाइडमिस के कंटिन्यूएशन में है, इसके अंदर भी जो एपिथेलिया पाया जाता है सेम एपिथेलिया, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलिया। नाउ दिस इज द एंड ऑफ माय लेक्चर टुडे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय video and press bell icon. Thank you very much for watching.